Thank you for the congratulations. So I suppose I'll start. Good evening, everyone. I am Sanskriti Singh. This year I scored All India rank 366. This was my fourth attempt, but this was the first time that I could qualify for the mains as well as the interview. And I was born in Karnataka, but I have a very cosmopolitan kind of heritage. So my father is from Bihar, my mother is from Varanasi, and I was born in Bangalore. And all my life, almost all of my life, I've stayed in Delhi. So I am a mix of everything. I have done my schooling from Convent of Jesus and Mary. Then I pursued history honors from St. Stephen's College. Thereafter, I pursued law from Faculty of Law, Delhi University. And after that, I started my preparation. So, and I'm very glad for UPSC time giving me this opportunity and this platform by which I hope to be able to help you. And I think I should start with prelims. I think I'll start with prelims. So as I mentioned before, this was my fourth attempt, and the first three times I couldn't clear the CSAT paper. So that was a very big learning, and that is the first thing I would like all of you to kind of take note of, that CSAT, although it is qualifying, it requires a lot of hard work, it requires a lot of practice. So that is one thing I would say, that it should not be ignored. What I did for my CSAT preparation is that there are several reference books which are available, and उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि कोई एक रेफरेंस बुक ले लीजिए, जैसे अरिहंत, या फिर बहुत सारे पब्लिकेशंस अवेलेबल हैं. मैंने अरिहंत से किया था, बट मोर देन अरिहंत मैंने क्वेश्चन पेपर्स बहुत सारे सॉल्व किए थे, एंड क्वेश्चन पेपर ऑलमोस्ट हर कोचिंग के, फ्रॉम विजन टू फोरम आईएएस टू वाजीराम टू प्रीवियस ईयर पेपर्स. तो मैं पेपर सॉल्व करती थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इवन व्हेन आई न्यू द क्वेश्चंस आई वुड नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस इन दोज 2 hours. So with respect to CSAT, I think it is not only mathematics, I think it is not only logical reasoning, it is not only English, but it is also time which needs to be managed very well. So I would definitely suggest that practice as much CSAT as is possible. Secondly, what I would do is almost 8 to 10 months considering मैंने 3 बार नहीं निकाल पाई थी मैं CSAT. लास्ट प्रिपरेशन में जो मैंने इस साल किया था, 8 to 10 months ऑलमोस्ट एवरी डे मैंने 2 घंटा दिया है उसको. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ हेल्प ऑल्सो दैट आई गॉट इन CSAT. देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस जो मैंने अपने से की. सो CSAT डेफिनेटली मुझे लगता है. अच्छा, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जैसे परसेंटेजेस, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन. इसके लिए मैं काफ़ी सारे यूट्यूब के वीडियोज़ को भी रेफ़र करती थी, तो उस सेंस में एक हेल्प मिल जाती है. बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, एंड दैट इज़ वन थिंग आई वुड want to say with respect to CSAT. Now let's talk about the GS paper in prelims. This time I was able to score a 120. In fact, every time मेरा CSAT में 66 आना मुश्किल हो जाता था, but almost 20 to 30 marks मेरे above ही रहते थे from the cutoff with respect to GS. उसका रीज़न बहुत सारा है, जो मैं मुझे जो लगता है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. तो CSAT GS के पेपर में आपने देखा होगा बहुत सारे एरियाज कवर्ड हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज हिस्ट्री, देयर इज पॉलिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वन थिंग एट द गेट गो विच आई वुड लाइक टू से इज, देयर इज समथिंग जिसमें आपका एज होगा. मे बी आपको उसको ऐसा प्रिपेयर करना चाहिए कि जितना हो सके इट शुड बी द केस कि आपके वो क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज आई हैव अ हिस्ट्री एंड लॉ बैकग्राउंड, आई ट्राइड माई बेस्ट कि एटलीस्ट हिस्ट्री पॉलिटी मेरा ऐसा रहता था कि उसमें क्वेश्चंस कम से कम गलत हुए. Secondly, I've also prepared geography, economics reasonably well. तो again उसमें भी मुझे एक confidence रहता था. जो मेरा एक कमज़ोर था relatively, that used to be science and technology. And science and technology has quite a chunk of the paper now. So I used to try and update myself time and again, but I am sure मेरी काफ़ी चीज़ें उसमें से मिस हो ही जाती थी. So आई स्टार्ट विद हिस्ट्री, एंड मैं साइमल्टेनियसली अपना वो भी बताती रहूँगी कि मेरे सोर्सेज क्या रहते थे. तो हिस्ट्री के लिए मैंने आई रेफर टू दी ओल्ड NCRTs विच इज़ RS शर्मा, सतीश चंद्रा, एज वेल एज बिपिन चंद्रा. बट दोज डूइंग बिपिन चंद्रा एंड स्पेक्ट्रम, आई बिलीव ऑलमोस्ट एक जैसा है, इसमें से एक भी किया जा सकता है. सो इट वुड बी RS शर्मा, सतीश चंद्रा एंड स्पेक्ट्रम. देन आई ऑल्सो डिड द न्यू NCRTs, बिकॉज देर हैव बीन टाइम्स जब डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए हैं न्यू NCRT से, इट बेयरली टेक्स अ डे और टू. सो दैट
फिर मैंने तमिलनाडु वाला NCERT आई हैव रेफर्ड बिकॉज इट हैज़ अ बेटर कवरेज विद रिस्पेक्ट टू साउथ इंडियन हिस्ट्री आई फील. So that is one thing which also I referred to. Apart from this, I used Nitin Singhania and the class 11 NCERT for art and culture. So this is something I did for history. Apart from that, for polity, it was only and only Lakshmikant as far as GS paper in prelims is concerned. For geography, again class 11 as well as class 12 history, class 11 and class 12 NCERT. उसके अलावा I also did GC Leong and बाजीराम से मैंने कोचिंग ली थी जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अराउंड 4.5 years ago. तो बाजीराम के नोट्स मुझे बहुत हेल्पफुल थे, मनोजा सर के नोट्स विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी. नाउ कमिंग टू इकोनॉमिक्स, अगेन क्लास 11 एंड क्लास 12 NCERT. देन जो श्रीराम IAS का कोचिंग मटेरियल है दैट वाज वेरी हेल्पफुल. बाजीराम के जो मेरे नोट्स थे इकोनॉमिक्स के वो मैंने रेफ़र किए थे. तो इससे इकोनॉमिक्स का बेसिकली इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स में वो बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं. फॉर एग्जांपल बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग जो टॉपिक है ऑलमोस्ट इनेविटेबली 1-2 सवाल आ ही जाते हैं उस पर. तो जैसे रेपो रेट क्या होता है, इकोनॉमी में लिक्विडिटी क्या होती है, क्या होगा अगर इन्फ्लेशन है तो RBI कैसा स्टांस रखेगा तब. सो दे आर वेरी बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो एक बार अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो इसमें कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं है, मोस्टली समझने वाला है. सो इकोनॉमिक्स दैट वे आई थिंक अगेन नीड्स अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो एक बेसिक अगर आप अपनी बुक रखेंगे तो आपको मिल जाएगी. विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट आई रेफर टू शंकर IAS. PMF IAS की बुक भी काफ़ी हेल्पफुल है. आई थिंक दोनों में से कोई एक भी किया जाए तो वो काफ़ी है. तो मैंने शंकर IAS रेफर किया था. अपार्ट फ्रॉम दैट ये वो बुक्स हैं जो मुझे लगता है कि बेसिक बुक्स हैं जिसको सब रेफ़र करते हैं एंड सबको करना चाहिए. इसके अलावा मैं वो बताती हूँ जो मुझे लगता है मैंने थोड़ा अलग किया एंड मुझे डेफिनेटली हेल्प किया है. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो एक मैपिंग है. मेरे रूम में वर्ल्ड एज वेल एज इंडिया की फिजिकल एंड पॉलिटिकल चारों मैप्स लगी हुई हैं, आज से 4 साल से लगी हुई हैं. एंड मुझे मैपिंग पसंद भी आता था एंड समहाउ मुझे लगता था it is easy and it should be done. So almost every day or every other day, maybe not every day, definitely thrice a week, मैं बस मैप को जाके 10 से 15 मिनट देखती थी. And very random, there was no pattern to it. Say just look at the rivers, the oceans, the straits, the kind of boundaries that countries share. So in general over years I have developed an understanding so that now by the time I gave my 4th attempt I feel that I have a very comprehensive understanding of the map. This has been very helpful to me, particularly in this prelims. For example, there was a question on the drainage basin covered by the Congo River, and there were 4 options given, 4 countries that were mentioned कि इसमें से किस country में Congo River भी flow करता है, drainage basin आता है किसमें. So this was a very easy question for me in terms of elimination. क्योंकि मैंने मैप इतनी बार देखा था, कुछ याद करने की बात नहीं है. It's just that वो विजुअल मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी that I could imagine कि कौन सी कंट्रीज नहीं होगी. तो समटाइम्स एलिमिनेशन हेल्प्स अ लॉट. एक और क्वेश्चन था आई रिमेंबर जिसमें था कि द कंट्रीज दैट बॉर्डर यूक्रेन. अगेन इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ दोज हु आर वेल वर्स्ड विद मैप और इफ यू हैव बीन लुकिंग एट मैप रेगुलरली, बिकॉज बहुत इजीली आप बता सकते हैं कि कौन सी कंट्रीज होंगी एंड मोर इजीली कि कौन सी नहीं होंगी. सो मैपिंग आई थिंक हैज़ हेल्प एंड दिस ईयर आई फेल्ट देयर वर क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चंस जो मैपिंग पे आए थे. ऑलमोस्ट हर साल आते हैं. सो दिस इज़ वन स्ट्रैटेजी जो मुझे लगता है मैंने शायद डिफरेंट की या शायद और लोग करते होंगे, बट दिस इज़ समथिंग जो रोज़ थोड़ा सा रेफ़र करना हैज़ डेफिनेटली हेल्प मी. इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है प्रीलिम्स में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी थोड़ा मेरा एक्यूलीज हील है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड उसमें नहीं है. तो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जनरली मैं या तो न्यूज़पेपर का जो रहता था वो रहता था. वन वेरी गुड थिंग अबाउट यूपीएससी इज़ वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुछ बहुत पुराना या बहुत टेक्निकल नहीं पूछते हैं. They generally ask questions which is very current. So it could be things like quantum computing. It could be about a space mission. It could be about Nobel Prize, something like that. So उस सेंस में it is very current. तो अगर आप thoroughly पेपर करते हैं तो it helps. उसके अलावा मैं विजन का PT 365 जो था पर्टिकुलरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करके जाती थी, तो मोर और लेस उससे मेरा अटेम्प्ट तो हो जाता था. इसके अलावा Am I audible? I feel reconnecting हो गया था बीच में. Can somebody please confirm?
All right. So yes, so with current affairs, इसके अलावा what I would do is everything to a certain extent current affairs में तो कवर हो ही जाता है. कोई भी टॉपिक करेंगे आप, वो किसी ना किसी टॉपिक में कवर होता ही है करंट अफेयर्स के. बट उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल जैसे लास्ट 1 ईयर में जो आया होता है. फॉर एग्जांपल दिस ईयर आई रिमेंबर देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन which of the following countries have seen a presidential coup, I feel something of that sort. तो उसमें 4 अफ्रीकन कंट्रीज के थे. सो अगेन इफ़ यू आर वेल वर्स्ड विद द पेपर, इफ़ यू आर डूइंग द पेपर्स एवरी डे, तो यूपीएससी कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो वन ऑफ होगा, कभी एक बार पेपर में आया होगा. इट इज़ नॉट द केस. वो ही पूछते हैं जो न्यूज़ में रेगुलरली आता रहा है, एटलीस्ट डेफिनेटली मोर देन वंस और ट्वाइस. तो मैं पेपर की नोट्स नहीं बनाती थी, मगर पेपर मैंने रिलीजियसली 4-5 साल जितने टाइम से भी मैं कर रही हूँ, एवरी सिंगल डे मैंने किया है. वो मैं स्विच करती रही, कभी द हिंदू करती थी, कभी इंडियन एक्सप्रेस करती थी. आई थिंक बोथ आर इक्वली गुड. एंड बहुत क्वेश्चंस मुझे लगता है आपके आंसर हो जाते हैं अगर आप पेपर से वेल वर्स्ड रहते हैं. ये जब मैं मेंस के बारे में बात करूँगी तब ये मुझे और फील हुआ था, तो आई विल शेयर दैट ऑल्सो विद यू व्हेन वी टॉक अबाउट मेंस. सो yeah, so questions sometimes are so current in news that वो cover हो ही जाता है when you do the newspapers regularly. इसके अलावा again one thing I did different and one thing I have been doing for the past every attempt for the past 4 years has been Telegram पे मैं at least the first and second attempt I gave, I used to follow a number of channels. Now here this is controversial. I am not saying that आप बहुत सारे sources को refer करिए, हालांकि मैंने किया है. What it helped me is मैं क्या करती थी कि मेरा रूटीन ऐसा होता था कि मैंने जैसे सुबह 3, साढ़े 3, 4 घंटा मैंने जो भी टॉपिक कर रही हूँ, मतलब मैं हिस्ट्री कर रही हूँ अगर, तो 3, साढ़े 3 घंटा मैंने हिस्ट्री किया सुबह. 3, साढ़े 3, 4 घंटे मैंने इवनिंग में हिस्ट्री किया. दोपहर का टाइम थोड़ा रिविजन के लिए रहता था, या मे बी एन आफ्टरनून नैप और पॉसिबल ऐसा कुछ करती थी मैं. रात में 1 घंटा 1 सवा घंटा लगता था मुझे पेपर करने में. उसके बाद अराउंड 2.5 to 3 hours मैं डेडिकेट करती थी to doing Telegram plus doing PDFs of certain topics जो मैं अभी बताऊंगी आपको. Telegram में मैं क्या करती थी, so अगर मैंने मान लीजिए 20 चैनल्स को फॉलो किया है, उसमें आई यूज टू इंश्योर कि 2 चैनल हिस्ट्री के होते थे, 2-3 पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, तो सबके बेसिकली हर जो हमारा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है. सो आई यूज टू इंश्योर दैट आई हैव फॉलोड ऑलमोस्ट एवरी चैनल. एंड आफ्टर दैट व्हाट आई वुड डू इज एवरी डे आई यूज टू pick up what was put up only that day. So I used to give say 10 minutes to history, 10 minutes to environment, 10 minutes to geography. So it ensured that पूरे दिन तो मैंने एक सब्जेक्ट किया था, बट वो 2-3 घंटे जो रात में मैंने थोड़ा हिस्ट्री, थोड़ा पॉलिटी, थोड़ा वो मैं रेगुलरली करती रहती थी. इसके अलावा जो इनसाइट्स है, इनसाइट्स करंट अफेयर्स, इनसाइट्स डेली करंट अफेयर्स इज एन अपडेट विच कम्स एवरी डे. सो दे कवर द पेपर्स इन दैट. तो एक बार पेपर पढ़ के मुझे लगता था कि याद तो हो नहीं रहा, एंड एक बार पेपर पढ़ने में कई बार अब बहुत ऐसी चीज़ें भी पढ़ते थे जो मुझे लगता है शायद इंपॉर्टेंट ना हो. पेपर करने के बाद 15 to 20 मिनट्स में ये डेली करंट अफेयर्स जो होता था इनसाइट्स का, वो पढ़ लेती थी. तो एक तो ब्रशअप भी हो जाता था मेरा जो मैंने पढ़ा है, एंड सेकेंडली एक आइडिया मिल जाता था कि इंपॉर्टेंट क्या है. सो इनसाइट्स करंट अफेयर्स आई थिंक इज अ वेरी गुड वे टू जस्ट कीप अप विद द करंट अफेयर्स एवरी सिंगल डे. नाउ कमिंग टू PDFs. This is, I think this took a good 1.5 to 2 hours of my time every single night. And जैसे जैसे प्रीलिम्स नज़दीक आता था ये टाइम और बढ़ जाता था, बिकॉज बाकी रिविजन की स्ट्रैटेजी मैं कम करती थी बुक से करने का, मैं PDF से ज़्यादा करती थी. अब मैं कुछ PDF की एग्जांपल्स देती हूँ कि मैंने जैसे क्या रेफर करती थी. One very commonly occurring questions in UPSC these years I've seen are history's key terms. So medieval India से बहुत key terms पूछ लिए जाते थे, and there is no book that you can am I audible? Alright, so yeah, so GS score में history key terms. So I would every day I used to pick up something like 5 terms every night. So if you do 5 terms every night for 6 months, you can do the math. So there's a lot of terms that you cover and keep coming back to it. Things like dates, things like national parks and wildlife sanctuaries, things like key terms of history. Often it so happens, voice.
Is it audible? Am I audible? ऑलराइट, तो भाई जो चीज़ें मुझे लगता है कि आपको रिपीटेडली करनी होती है, आप एक बार पढ़ के उसे याद नहीं कर सकते, उसे रेगुलरली करना चाहिए। मैंने कहीं सुना था या पढ़ा था कि 1000 चीज़ें करने से अच्छा आप एक चीज़ को 1000 बार करिए, एंड दैट ट्रूली हेल्प मी। सो फर्स्ट थिंग्स लाइक हिस्ट्री की टर्म्स, सेकेंडली रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। आई यूज टू रेफर टू IAS पार्लियामेंट का एक बुकलेट है, एंड आई थिंक आई हैव गॉन थ्रू समथिंग लाइक 200 रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस जिस दिन कि रिपोर्ट किसकी होती थी एंड इंस्टीट्यूशन कौन था जो उसको रिलीज करता है। तो इससे क्या होता था कि ऑलमोस्ट हर साल 1-2 सवाल आए हैं, 200 दिन तो मिल जाता है। मैंने अगर हर रोज भी मैंने एक रिपोर्ट भी याद की, एक रिपोर्ट का नाम, वो डेफिनेटली हो जाता है। सो दीज आर थिंग्स जो सुन के लगता है कि अरे 200 रिपोर्ट्स, अरे इतने हिस्ट्री के की टर्म्स, बट व्हेन यू डू इट फॉर 5 मिनट्स एवरी डे फॉर ओवर अ ईयर और ओवर 6 मंथ्स, वो कहीं ना कहीं रह जाता है। सो रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की एक बुकलेट थी अगेन IAS पार्लियामेंट की। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का जैसे आई थिंक एक एक पैराग्राफ में या लेस देन हाफ अ पेज में उस इंस्टीट्यूशन के बारे में होता था, उसका फाउंडिंग मेंबर्स क्या हैं, वो क्या करता है। सो ब्रॉडली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में एक आइडिया मिल जाता है उससे, एंड आई थिंक इट है। तीसरा अगेन चौथा इज एग्रीकल्चर पे। आई डोंट रिकॉल इस साल क्वेश्चन आया कि नहीं, बट over the years UPSC has generally asked 1 or 2 questions definitely from crops and agriculture related questions। तो उसके लिए मैं क्या करती थी, अगेन तो मैंने कोई ना कोई ऐसा PDF डाउनलोड किया होता था। ऑनलाइन आप डाल लीजिए, आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आपको गूगल कर लीजिए, आपको ऐसा PDF मिल जाएगा। सो आई यूज्ड टू जनरली जस्ट लुक एट से द 15 to 20 इंपॉर्टेंट क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन इंडिया, उसका कैसा क्लाइमेट होना चाहिए, वो कहाँ पे ग्रो होता है, इन जनरल एरिया कितना है उसका इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो कंट्री में कवर्ड है। सो आई रिमेंबर आई थिंक 2022 में देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट a crop which requires 210 days of sunshine. I remember reading this exactly in my notes and it is cotton. So things like that वो जब आप बार बार करते हैं, that's what I'm saying, 5 history key terms, 2 reports के नाम every day, 2 crops each day, समथिंग लाइक नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज का हर स्टेट का मेरे पास ऐसे मैंने टेलीग्राम से कहीं से डाउनलोड किया था, जिसमें हर स्टेट के जो नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं वो मैप्ड थी। सो फॉर एग्जाम्पल स्टेट लाइक कर्नाटका, तो कर्नाटका का कहाँ पे है, क्या एनिमल्स है, एक मोटा मोटी, तो रोज मैंने एक मैप देख लिया, एक स्टेट का देख लिया सिर्फ, तो एक आइडिया हो जाता था। स्पीशीज फॉर एग्जाम्पल, अगेन आप एक दिन 100 स्पीशीज नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप 100 दिन एक स्पीशीज तो पढ़ सकते हैं। एंड अगेन आप मतलब 2-3 स्पीशीज एवरी डे करेंगे तो वो मुझे लगता है हेल्प हो जाता है। एंड अगेन दिस वाज अ वेरी कॉमन थीम दैट इज बीन रिकरिंग इन प्रीलिम्स। तो स्पीशीज इन न्यूज, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज एंड पार्क्स, तो ये सब मुझे लगता है रेगुलरली मैं ओवर द कोर्स ऑफ 2 hours ईच नाइट ये सब कुछ मैं थोड़ा करती थी। सिमिलरली विद आर्ट एंड कल्चर, कोई एक आर्ट फॉर्म कवर कर लिया एक रात में या 2 आर्ट फॉर्म कर लिया। थिंग्स लाइक रामसार साइट्स या मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व पे कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का जो कवर होता है, तो एक एक करके एक रामसार साइट एक दिन में कर लिया, उसके बाद में एक पेज पढ़ लिया, तो इट हेल्प्स। व्हाट आई एम सेइंग इज आपको लग रहा होगा ये बहुत ज़्यादा है, बट अगेन अगर आप रेगुलरली इसको थोड़ा करके करेंगे तो पहली बात तो ज़्यादा नहीं लगता, दूसरा मल्टीपल रिविजन्स हो जाते हैं, तीसरा इससे थोड़ी हेल्प आपको मेंस में भी मिलती है टू काइंड ऑफ enhance and embellish your answer, so that makes your answer much more appealing, and I think it sets it apart from what others may be writing which may be much more generic। तो इस सेंस में मुझे मिलता है। विद रिस्पेक्ट टू ये जो मैं PDFs कह रही हूँ, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ माई PDF स्टडिंग वॉज मैपिंग अगेन। सो अपार्ट फ्रॉम द मैप्स जो मैंने कभी आते जाते जो मैं देख लेती थी, दैट यूज्ड टू बी समथिंग लाइक 10 minutes जो वर्ल्ड मैप और फिजिकल इंडिया का लगाया हुआ था मैंने वॉल पे, उसके अलावा मैं रिवर्स के मैप्स को ज़रूर देखती थी, बिकॉज इनएविटेबली ऐसा कोई UPSC का साल नहीं है इन द रिसेंट ईयर्स जब 1 या 2 सवाल रिवर्स से पूछा नहीं गया है। फॉर एग्जाम्पल 2023 में एक क्वेश्चन था कि झेलम passes through Wooler or not, as to whether the Krishna river feeds the Koleru lake or not. So again, when I looked at the maps of
रिवर्स एंड सो ऑन, तो आपको एक आइडिया मिलता है कि उसका फ्लो पैटर्न कैसा है। वहां पे आपको वो जब विजुअली वो मेमोरी वो तुरंत फ्लैश हो जाती है जब आपने उसको बार बार देखा है, इसमें कुछ याद नहीं करना है, जस्ट लुक एट द मैप एवरी डे, तो इसमें हेल्प हो जाती है।